Good morning, my dear students. Let's continue our chapter Reaching the Age of Adolescence. In the previous class, we have done the definition of puberty and adolescence and the different type of glands like exocrine and endocrine. Exocrine gland is not in our syllabus. We're going to discuss endocrine glands. So let's start the endocrine system. My dear students, you can see the table of different type of glands here. You can also see the location, function and function of hormone, means 3 column in front of the first column. This is our first column, second, third and fourth. With the help of this 4 column, we going to understand the name of glands, location of glands, function of glands and the function of hormone that is produced by the glands. But before that, there is a diagram of endocrine glands in our body. You can see pituitary gland on the top, thyroid gland, next is thyroid gland that is present in the throat, adrenal gland, pancreas, ovary and testes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are going to discuss 6 endocrine glands in this video. But if we ignore these red color label, then we have the respiratory system. You can see the lungs. We have a you can see the digestive system here. You can see the stomach here. You can see the excretory system, or you can see urinary system here. You can see the kidneys, stomach and lungs. These 3 type of organs related to 3 different systems, because stomach is related to human digestive system, lungs is related to human respiratory system and kidney are related to the urinary system. बट मैंने इन सबको इसलिए ड्रॉ किया यहाँ पे क्योंकि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको शो करने के लिए मुझे कंप्लीट बॉडी को ड्रॉ करना होगा. दैट्स व्हाई आई ड्रॉ इट हियर कंप्लीट बॉडी. इसलिए आप देख सकते हो कि कुछ थायराइड ग्लैंड्स हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहीं ना कहीं लिंकअप कर रही है. एड्रेनल ग्लैंड किडनी ग्लैंड्स यानी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर, और जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है. तो इसलिए आई हैव टू ड्रॉ द 3 काइंड ऑफ सिस्टम हियर. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्लैंड्स के नेम. ग्लैंड्स की प्रोनाउंसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. इनको लर्न करना भी हमारी ड्यूटी है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी हमें आनी चाहिए कि इनको बोलते कैसे हैं. First column is of the name of gland. Just the name of glands mentions are there. Number 1, pituitary gland. It is pituitary gland. Number 2, thyroid gland. Number 3, adrenal gland. Number 4, pancreas. Number 5, ovary. And number 6, testes. Pancreas को मैंने स्पेशल यहाँ पर अंडरलाइन किया है because pancreas related to exocrine as well as endocrine glands. It has a both function. It can produce enzyme and it can be produce hormones. ये hormones भी produce कर सकता है और enzymes भी produce करता है. You can see the pancreas here, just below the stomach, on the left hand side, just below the stomach. इनके पास ducts भी हैं. इनकी एक साइड में डक्ट है और जो अदर साइड है वो डक्ट्स नहीं है. तो ये डक्टलेस भी हैं और विद डक्ट्स भी हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड से बिलोंग करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड से बिलोंग करती है. तो ऐसी ग्लैंड्स को बोलते हैं हेट्रोक्राइन. क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन. हेट्रोक्राइन जिनके पास दोनों ही ग्लैंड्स के फीचर्स होते हैं. दे कैन प्रोड्यूस एंजाइम्स एज वेल एज दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. ठीक है, तो पेनक्रियाज एक आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको मिला कि ऐसी ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हो, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह एक्ट भी करती हो और वो एंजाइम से प्रोड्यूस करती हो फूड को डाइजेस्ट करने में. तो ओनली वन ग्लैंड, वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियाज. ओके, चलिए, जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में हमें लोकेशंस मेंशन है यहाँ पे कि जो ग्लैंड सही प्रेजेंट कहाँ पर है बॉडी में. ऐसे नहीं कि किसी एक ही ऑर्गन में सारी की सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, नहीं, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है और फिक्स्ड है. इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती हैं. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के पास है तो ब्रेन के पास ही है, ऑलवेज प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द ब्रेन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नंबर 1, pituitary gland is located under the brain. You can see here, this is brain and you can see the pituitary gland here.
द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज जस्ट लाइक द साइज ऑफ पी, मटर के दाने जैसा, इतना ही साइज होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। नंबर 2, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट और यू कैन से लोकेटेड इन द थ्रोट और यू कैन से इन द नेक रीजन, हमारे गले में, गले के आसपास यहां पर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, थ्रोट। ओके। नंबर 3, एड्रिनल ग्लैंड। The location of adrenal gland is just above the kidney. You can see the pair of adrenal gland. Adrenal gland is present in the pair present होती है। Pituitary gland single present है, thyroid gland भी single present है। जो नंबर 3 है adrenal gland, ये pair में present है, यानी 2 होती हैं, 2 किडनी है तो दोनों किडनी के ऊपर एक adrenal gland present है। नेक्स्ट है pancreas. Pancreas is just present below the stomach on the left hand side of abdominal cavity. हमारी abdominal cavity होती है हमारे lungs के नीचे वाली जो cavity है उसको abdominal cavity बोलते हैं। तो stomach में जो left hand side में आपके present है pancreas. ओके। नेक्स्ट है ovary. ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। ये सभी जो पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, ये तो मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। बट जो नेक्स्ट जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी एंड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होती है। यू कैन से द पेयर ऑफ ओवरी, और ये भी पेयर में होती है। पहले तो पेयर में आपकी एड्रिनल थी, अब पेयर में क्या आई है? ओवरी। ओवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। कहां प्रेजेंट होती है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी फीमेल्स की जो बॉडी होती है उनके अंदर ही प्रेजेंट होती है, बाहर नहीं होती है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है। हैंग इन अ स्क्रोटम, ये हमने रिप्रोडक्शन में किया था कि स्क्रोटम क्या होता है? पाउच होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी। सो दिस इज द सेकंड कॉलम, जिससे हमें पता चला कि लोकेशंस क्या हैं आपकी डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स की। अभी हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू रब दिस पोर्शन। हम इस पोर्शन को रब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोकेशन मेंशन है। लोकेशन हमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर भी दी है। ठीक है। यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में है और यहाँ पर हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दिए। अब हमें पता चल गया है कि कहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास स्पेस हो जाएगा और हमारे फंक्शंस को इजीली एलोबरेट कर सकेंगे इस एरिया पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। व्हाई हम इसको मास्टर ग्लैंड या मदर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड या मदर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लोकेशन हमें पता है इसकी। अब वो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? जो मेन हॉर्मोन्स है वो मेंशन करता हूं मैं, जैसे कि जीएच। व्हाट इज जीएच? द फुल फॉर्म ऑफ जीएच इज ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किस हार्मोन को बोलते हैं? हम ऐसे हार्मोन्स को स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं जो किसी दूसरी ग्लैंड्स को पुश करते हो, एक्सेलरेट करते हो काम करने के लिए। यानी अगर ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो नेक्स्ट ग्लैंड भी वर्क नहीं करेंगी, इसलिए इनको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो अगली ग्लैंड से काम करवाती हो, वर्क कराती हो। तो इसलिए हम इसको मास्टर या मदर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इट प्रोड्यूस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी एग्जांपल है हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को एक्सेलरेट करता हो। आपकी ये रही थायराइड, यानी जब तक थायराइड को TSH नहीं मिलेगा फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इट डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है। ठीक है ना? वो काम नहीं करेगी, इट विल नॉट वर्क until it receive the TSH hormone from the pituitary gland. That's why we call it master gland. यानी ये दूसरी ग्लैंड से भी काम करवाती है। ठीक है ना? और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उनको कंट्रोल करती है। कैसे? जैसे कि आपके टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर फंक्शन करते हैं। यानी जब तक टेस्टिस और ओवरीज को ऐसे हार्मोन नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से वो काम करे, तो वो वर्क नहीं करेंगे, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम इसको, TSH। और क्या करती है?
अगर इसकी फंक्शंस की बात करते हैं, हमें ग्रोथ का फंक्शन पता चल गया, स्टिमुलेशन, स्किन कलर, ये एक हार्मोन है, उसका नाम है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, और ये प्रोड्यूस करती है आपकी मेलाटोनिन। द हार्मोन नेम इज, आपने सिर्फ मेलाटोनिन याद करना है, मेलाटोनिन हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो हमारे स्किन का कलर डिसाइड करता हो, हम कितने फेयर हैं, हमारे कलर कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये डिसाइड करता है मेलाटोनिन हार्मोन से, ठीक है ना। और वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। यानी नॉर्मल फंक्शन तो कर ही रहा है, नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ भी कराती है पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉर्मल कलर भी डिसाइड करे स्किन का, और ये ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो अदर ग्लैंड्स को वर्क कराते हैं, दैट इज लाइक टीएसएचएस, और अगर हम बात टेस्टिस और ओवरीज करें तो मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी आप सिर्फ इसकी फुल फॉर्म मत याद करना, सिर्फ इसमें याद करना कि हाँ, जैसे कि टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कुछ वैसे हार्मोन्स हैं आपके एलएच और एफएसएच, एलएसएच और एफएसएच के अंडर ही आपके टेस्टिस और ओवरीज वर्क करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ उनकी एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH from the pituitary gland. When it receives TSH from the pituitary gland, thyroid is producing thyroxine hormone. Now what is the function of thyroxine hormone? थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है हमारी बॉडी डेवलपमेंट का, फिजिकल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ, ये हमारा फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन का। और एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि अगर जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलता है, इफ इट डज नॉट रिसीव आयोडीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी के बाहर से इसको आयोडीन नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगी, इट विल स्वेल्स अप, सूज जाएगी ये। और इसलिए आप यहाँ पर एक आपने कहीं पे देखा भी होगा, कुछ बच्चों के जो थ्रोट है काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि जो बच्चे आयोडीन कंज्यूम नहीं करते। लेकिन हमारे जो सॉल्ट्स हैं, जो हम सॉल्ट्स कंज्यूम करते हैं, टेबल सॉल्ट, उन टेबल सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी आयोडीन होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन कमी नहीं होती है और हमारी जो थायराइड है वो एफिशिएंटली वर्क करती है, ठीक है। व्हेन थायराइड रिसीव TSH इट प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू बॉडी ग्रोथ। यानी जो सेकंड आप जो थर्ड आप कॉलम देख रहे हो बच्चों, थर्ड कॉलम सभी ग्लैंड्स का सेम ही है कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बट उन हार्मोन के नाम अलग अलग है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया था, TSH प्रोड्यूस किया था, थायराइड ने थायरोक्सिन प्रोड्यूस किया था। लेकिन सिर्फ हमें इतना ही याद नहीं रखना है कि वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, इट इज आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स आल्सो। वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ देयर आल्सो। इट इज मेंशन इन द फोर्थ कॉलम, ग्रोथ डेवलपमेंट। नाउ नंबर 3, एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज द अबव द किडनी एंड इट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस हार्मोन। व्हिच हार्मोन, द नेम ऑफ हार्मोन इज एड्रिनलिन, इट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ ग्लैंड, नेम ग्लैंड का नेम भी वही है और हार्मोन्स का नेम भी कुछ कुछ वैसा ही है। एड्रिनल द नेम इज द ग्लैंड, और यहाँ पर एड्रिनलिन जो है वो हार्मोन्स का नेम है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन, इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से फेमस है बिकॉज इट सेव्स यू फ्रॉम द इमरजेंसी सिचुएशंस, आपको इमरजेंसी सिचुएशन से सेव करता है। हाउ, 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी इन आवर लाइफ, लाइक फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट। कई बार हमें फाइटिंग करनी पड़ जाती है, लड़ना पड़ जाता है, तो उसको हम फाइटिंग सिचुएशन बोलते हैं। उस फाइटिंग से हमें कई बार भागना पड़ जाता है तो उसको फ्लाइट बोलते हैं, रन अवे, भागना पड़ जाता है। और फ्राइट जब हम डर जाते हैं, व्हेन वी शॉक्ड, कोई हमें डरा देता है तो उसको हम चौंक जाना, तो उसको हम फ्राइट बोलते हैं, ट्रिपल F, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम आपकी बॉडी, हम नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, आप डर जाते हो। आप कई बार डरने के बाद देखना, अपने हार्ट को टच करना, क्या होगा, जो आपका हार्ट बीट है वो बहुत तेज, जो हार्ट है वो बहुत तेज बीट कर रहा होगा, लव डब साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हाई,
बिकॉज जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो चुकी है फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड एंड द फंक्शन ऑफ एड्रेनल इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज कर देती है। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी जो मसल्स है वहां तक ब्लड बहुत जल्दी पहुंचेगा और जल्दी पहुंचने की वजह से क्या होगा, आपको फास्ट ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन अगर आपको जल्दी मिलेगी तो आपकी मसल्स थकेंगी नहीं, इट विल नॉट फटीग एंड यू कैन इजीली रन without any problem. Okay, so this is the function of adrenal gland. Next is pancreas. Pancreas से क्या function होता है? Pancreas is generally present on the left side under the stomach. The function of pancreas is to produce insulin hormone. ये नाम आपने सुना भी होगा, insulin hormone. The function of insulin is to control the sugar content in the body. अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन वर्क नहीं करता है तो उसको हम शुगर का पेशेंट बोलते हैं, ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हम बोलते हैं ना, ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज द लेवल ऑफ शुगर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन हर और हिज बॉडी। ठीक है ना, तो ऐसे पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं जहां पर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है या वर्क नहीं करता है। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। ग्लूकोज लेवल जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। शुगर है होती क्या है, शुगर ग्लूकोज ही तो होती है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर तो शुगर बढ़ने लगती है, हम बोलते हैं शुगर बढ़ रही है, इज द लेवल ऑफ शुगर इज इंक्रीजिंग। और अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो वी सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट ओवरी। नाउ ओवरी इज द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। ठीक है, और इट अकर्स इन पेयर्स, पेयर में प्रेजेंट होती है। The function of ovary is to produce estrogen hormone. Estrogen. What is the function of estrogen? Estrogen controls the secondary sexual characteristics in females. What are secondary sexual characteristics? Sexual characteristics होते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं फीमेल को मेल से, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करने के बता देते हैं कि दैट ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट इन फीमेल्स, द थाइज एंड हिप स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल्स, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, ऑलरेडी मेंशन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है टेस्टिस। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। एंड द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज टू कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज। शोल्डर का बढ़ना, बोन का साइज इंक्रीज होना, आपका द production of beard and mustache in boys, these all characteristics related to the sexual characteristics of boys. So these are the functions of different type of glands in our body.